are moved from TCS to Infosys, had some certain small difficulties in terms of skill. So transfer of knowledge from A company to B company, dealing with that, certain. So who knows all that? So this is skill beyond the skill, beyond the skill. We have not invested much into developing or creating knowledge on these subjects. It will again, it becomes not available. It into all those, big projects that we think about. So it will be working as a think tank. Now, looking at current status, whatever we have done so far on this scale, I see one important activity is part of this capacity building. Government thought to create modules for training to government officers. I think building the NISG and now it also is part of those agenda. And I'm happy we work together to develop a curriculum also on e-governance. We offer it for this person here. It's a good beginning, but late beginning of course. And I think we have already established institutions in the form of not IIT, NIT, triple ITs, other government colleges, private engineering colleges. Because entire country, government is not even there. It's go to block level, so government is everywhere, and every government officer required this knowledge. And so every those big locations required to have resource person to present and so knowledge about problems and about solution is important. So we need to develop about those clusters in those small locations, officers, persons who know the knowledge and get transferred to those who need it, and then get retrained from those. So kind of pyramid model where something is being coordinated by say center of excellences, how the IIT campuses, NIT campuses, triple campuses, and they mentor into those small technical institutes, maybe led by NIT and other who are part of NIT. We spread this scale across entire government sector. I think government of India has thought about developing or starting a government academy. It's a good thought, yet to beginning of course. And it is been following a block model where it will be having a central faculty and then guide another small centers. So things are now taught nicely. Let's hope nothing will start happening very soon. Thank you so much. Thank you, Professor, for your comments. As you mentioned, capacity building is a huge area in which government is doing work, but still a lot more needs to be done. We also have plans to set up a national defense academy, which would tackle the issue of capacity building in R&D and governance in a more holistic way, focusing on capacity building across the entire domain of governance, starting right from the lowest level government official at the village level up to the state level and national level. So that's the plan that we have, and we hope that all this will fructify in the time to come. But at present, there is need to involve all the stakeholders in capacity building at all levels. Government alone cannot really take up this task, especially when it comes to skilling the entire population. The skill that we currently have, for example, the CSC Common Service Center, they do some work in ensuring that they provide the course relevant for providing skills to the common people. But still, the efforts have to be scaled up manyfold to achieve the goals of digital India in a far more focused and effective manner. I would next invite Director MD NIRIT, Dr. Ashwini Kumar Sharma for his comments. Thank you, Chairman साहब. मेरी रिक्वेस्ट आई है कि आप हिंदी में बात करें तो अच्छा रहेगा. मैं अपना डिस्कशन डिलीब्रेशन हिंदी में ही करूँगा. देखिए, जब हम स्मार्ट गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, इनडायरेक्टली बेसिकली हम ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब स्मार्ट का मतलब हम देखते हैं तो सिंपल, मॉड्यूलर, अडेप्टिव, रेस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट, और ये सब चीज़ें ई गवर्नेंस के माध्यम से ही हम आम जन तक, आम नागरिक तक पहुंचा सकते हैं. ई गवर्नेंस एक बहुत वाइड एरिया है, इसमें आप जितना काम करें उतना कम है. और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अदर इशू जो इसके कंपोनेंट हैं
उसमें सबसे दो बड़े इंपॉर्टेंट इशू आते हैं, क्योंकि जब मैंने परियोजनाएं की सबसे बड़ा एक इशू आता है ऑनरशिप। क्योंकि गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस में हमें ये बहुत क्लियर माइंडसेट रहना चाहिए, और स्पेशली हमारे जो प्रतिनिधि देश के कोने से पधारे हैं, मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग डिजिटल इंडिया के कोर्सेज आप लोगों के माध्यम से रोल आउट करेंगे, ये बहुत क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि ई गवर्नेंस में ई का कंपोनेंट करीब 15% से 20% होता है, गवर्नेंस का कंपोनेंट 75-80% होता है। ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि जनरली हर डिपार्टमेंट की ये मानसिकता रहती है कि गुड गवर्नेंस मीन्स NIC, NILET, डिपार्टमेंट ऑफ IT, जबकि ऐसा नहीं है। आप गवर्नेंस को एक IT के माध्यम से एक ट्रांसपेरेंट वे में एक स्पीड का उपयोग करते हुए, जो कंप्यूटर का फीचर है, वॉल्यूमिनस डेटा हैंडलिंग का जो फीचर है, उसको यूज करते हुए आम जन तक पहुँचा रहे। सो बेसिकली ये क्लियर मैंडेट रहना चाहिए, माइंड में हमारे क्लियर रहना चाहिए कि हम ई गवर्नेंस में ई कंपोनेंट पे ही ध्यान दे रहे हैं। गवर्नेंस के कंपोनेंट के लिए हमारे गवर्नमेंट में चैंपियंस हैं, हम उसके चैंपियन नहीं हैं, हमें पता नहीं है कि कैसे गवर्नेंस में सिस्टम बदलते हैं। दूसरी चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब हम गुड गवर्नेंस पे, ई गवर्नेंस पे बात करते हैं तो जनरली हम प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। प्रोसेस को री इंजीनियर करना, गवर्नमेंट प्रोसेस को चेंज करना, जैसे कि JS पासपोर्ट ने बताया आपको कि बिना प्रोसेस को री इंजीनियर किए इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब हमें ये क्लियर होना चाहिए कि गवर्नेंस का, जब हम ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो हम ऑटोमेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ऑटोमेशन तो ये हुआ जो लिखा हुआ है उसको आपने कोड बनाया, डाल दिया और सिस्टम चल रहा है। जब हम ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कि हमें प्रोसेस री इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग, BPR, ये सब चीज़ें डालनी पड़ती है। कैसे हमें चेंज मैनेजमेंट करना है, कैसे एग्जिट मैनेजमेंट करना है, बिकॉज आप एक वेंडर से दूसरे वेंडर को जाएंगे, सिस्टम परमानेंट आप उसको दे नहीं सकते, ये सब चीज़ आती है। परंतु सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है, क्योंकि आपने देखा 3 पिलर में पीपल भी आ रहा है और टेक्नोलॉजी भी आ रही है, इन दोनों फील्ड में कैपेसिटी बिल्डिंग का सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि कोई भी चीज़ ट्राइपॉड को यदि आप एक पिलर पे खड़ा करना चाहें, प्रोसेस पे खड़ा नहीं हो सकता। यू नीड 2 more pillars, and these 2 pillars are people, that is where you have to train the public as well as those who are implementing the projects. जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको आपको टेक्नोलॉजी के रूप में ट्रेन करना है, एज ए टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में, और जो सिटीजन्स हैं उनको आपको ये ट्रेन करना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग विभागों ने जो पोर्टल्स बनाए हैं, जो सुविधाएं दी हैं, उनको कैसे उपयोग में लाया जाए। ये सबसे बड़ा एक डिजिटल इंडिया का जो सुबह माननीय मंत्री महोदय ने भी फरमाया और जिक्र किया कि हमें हर सिटीजन को ट्रेन करना पड़ेगा कि किस तरह हम जो डिजिटल इंडिया का एक सपना लेके चल रहे हैं, जिसमें कि घर बैठे बैठे एक आम आदमी को हर चीज़ें मिल जाएंगी, उसको कॉलेज में एडमिशन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेवेन्यू सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट से पिक होके वो इंटीग्रेट होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग एक हमारा सबसे बड़ा रोल है, NILET का दायित्व भी यही है। आप लोग जो हमारे पार्टनर्स बाहर से बता रहे हैं, आप लोगों का भी यही दायित्व है कि इसमें आप अपनी क्षमता धीरे धीरे डेवलप करें, क्योंकि जिस तरह भारत सरकार का सोच है कि हर फैमिली में एक आदमी डिजिटली लिटरेट होना चाहिए, उसमें आपके माध्यम से ही उसको आगे रोल आउट करेंगे। जैसे एक CCC कोर्स था जो हम लोगों ने कई स्टेट में चालू किया, कई स्टेट ने इसको रोजगार से लिंक करके मैंडेट किया। अब उसी तरह हम ये कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का जो बेसिक कोर्स है वो हम आप लोगों के माध्यम से रोल आउट करें। और जो सुबह इंटेल के साथ MOU हुआ, आप लोगों ने देखा, उसका पर्पज ये था कि जो इंटेल है वो एक सॉफ्टवेयर ऐसा बना के दे दी है जो कि किसी भी भाषा में ऑपरेट किया जा सकेगा। क्योंकि यदि हमें ई गवर्नेंस को रियली इम्प्लीमेंट करना है और हमें डिजिटल इंडिया का सपना साकार करना है, तो हमें लोकलाइजेशन पे काम करना पड़ेगा। लोकल जो लैंग्वेज है, क्योंकि आपने देखा हो मोबाइल में जितने लोग लोकल लैंग्वेज होती है उनके लिए उतना ऑपरेट करना आसान होता है। एक ये सबसे बड़ा रोल हम प्ले कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपने छोटे छोटे जो कोर्सेज हैं डिजिटल इंडिया से रिलेटेड या ई गवर्नेंस से रिलेटेड वो चला सकते हैं। और इसी संदर्भ में आज सुबह हमने माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा एक बुक का विमोचन किया था, जिसमें हमने अपने CCC कोर्स को अपग्रेड किया है, जिसके अंदर हमने, जिसको हम डिजिटल लिटरेसी कहा करते थे, अब वो डिजिटल लिटरेसी प्लस ई गवर्नेंस लिटरेसी दोनों को मर्ज किया है।
और हमारा उसमें यही प्रयास है कि कम से कम 5-6 विभाग को एक वो लेके हिस्ट्री लेके किस तरह हम लोग उसमें जा सकते हैं, क्या सुविधा आम नागरिक को मिलती है पता लगे, कैसे उसको अवेल करनी है पता लगे। उसके अलावा हमने एक 200 घंटे का कोर्स भी आज से चालू किया है, वो है एक्सटेंडेड सीसीसी कोर्स। उसका पर्पज यही है कि हम जो ई गवर्नेंस के कई कंपोनेंट्स हैं, वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो फील्ड में काम करते हैं, आपने अभी जिस पासपोर्ट को सुना कि आपको 5,000 प्लस 3,000 लोगों को ट्रेन करना पड़ा, इस तरह की एक्टिविटीज हम लेना चाहते हैं। क्योंकि निलिट के साथ पॉजिटिव पॉइंट ये है कि निलिट के 6,500 पार्टनर्स, 500-900 पार्टनर्स एक्रेडिटेड पार्टनर्स, साथ में लगभग 5,000 जो पार्टनर्स फैसिलिटेशन सेंटर की तरह काम कर रहे हैं, हम इनके माध्यम से रोल आउट कर सकते हैं। जैसा आज माननीय मंत्री महोदय ने सुबह ये फरमाया कि नाइलेट सीएससी को भी यूज करें, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी हमारा सीएससी एसटीबी के साथ एक समझौता करार किया गया था 2 साल पहले, और उसके माध्यम का यही रूल था कि हम सीएससी के लोगों को ट्रेन करेंगे और धीरे धीरे वो हमारे फैसिलिटेशन सेंटर बन के आगे ट्रेन करेंगे। परंतु वहाँ भी ये जरूरी है कि हम लोकल भाषा में पढ़ाएं, अदरवाइज कोई भी हमारे यहाँ पढ़ने नहीं आएगा। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी एक और थी कि अभी इस सेशन के बाद गौरव द्विवेदी साहब जो सीईओ हैं माईगॉव के, वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। हमारा ये भी प्रयास है कि हम माईगॉव की ट्रेनिंग भी, क्योंकि माईगॉव भारत सरकार का एक विजन मैप है, माननीय प्रधानमंत्री का एक विजन है कि हर आदमी पब्लिक जो है वो सरकार से जुड़ सके, वो अपने विचार, क्रिएटिव विचार, प्रॉब्लम्स बता सके। उसके लिए भी एक स्किल डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाना है। हम ये प्रयास करेंगे, गौरव द्विवेदी साहब से निवेदन करेंगे कि यदि वो हमें ये मौका देते हैं, हम आप लोगों के थ्रू इसको माईगॉव ट्रेनिंग को भी रोल आउट करें। और उसमें हमारा यही प्रयास होगा कि हम पहले हर स्टेट में वर्कशॉप कराएं, और वर्कशॉप कराने के बाद मास्टर ट्रेनर ट्रेन करें, और फिर आप लोगों के थ्रू रोल आउट करें। क्योंकि फील्ड में अवेलेबिलिटी आपकी ज़्यादा है, आप लोगों का ज़्यादा रोल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डिजिटल इंडिया हम लोगों के लिए हर तरह से, बिजनेस एंगल से और सिटीजन एंगल से हमारे लिए बहुत अच्छा सपना साकार हो सकता है, भारत सरकार के सपने के साथ साथ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी। आपने जैसा कहा, नाइलेट काफ़ी बड़ा योगदान रहा है पूरे देश में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने में, और जितने सेंटर्स हैं नाइलेट के वो काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं दिशा में, और आगे और काम करने की काफ़ी गुंजाइश है। हमारे नए प्रोग्राम जो आए हैं, डिजिटल इंडिया है, NGP 2.0 है, ई क्रांति, और जो माईगॉव प्लेटफॉर्म है, ये 3 मुख्य प्रोजेक्ट जो अभी आए हैं हमारे सामने, इनके अंदर में काफ़ी काम करने की जरूरत है। उस नाइलेट के सेंटर से काफ़ी योगदान रहेगा। तो हम सभी उम्मीद करते हैं कि आप अपने सेंटर्स के द्वारा पूरे देश में जो हमारा ये जो एम है टू इंश्योर दैट एवरीवन गेट्स द स्किल्स रिक्वायर्ड to use digital platform meaningfully, that is achieved. So next I would invite Shri Ajay Chakti, Additional Secretary, IT Government of NCT, for giving his remarks. I will focus on 2 points. One is what are the technological trends which are going to impact the skills required today and tomorrow, and what are who will be impacted by these changes in the trends, and at what level. So what are the broad technological trends that we are facing today? One is social media, another is mobile, third is cloud, and in future it would be big data. These are some of the trends. And how do we define the stakeholders for skill development? One is the citizenry, second is the service providers, and third is the government service. As regards citizens, our task is completed when basic literacy, digital literacy skills are available with the citizens, when they can log on to the websites, scan their documents, upload their applications, and download their electronically, digitally signed certificates. To that extent, digital literacy will be okay. What about the service providers? Basic ICT skills with some sort of, with good customer orientation. That is more important.
But within the government, there is a lot of scope for reskilling. Now at the level of LDCs or data entry operators or stenos, the skills required earlier was speed of typing. But now with software like speech to text coming free, I do it in my WhatsApp. I just speak and the minutes come out, and then I email them, I WhatsApp them. So that type of skill, basic ICT skill for these three type of people will slowly reduce in importance. Now what about the next level? We have signing authorities. Under the electronic delivery service rules, which were circulated by the government of India 2 years back, some states have already formulated their own rules. So these certificates, these licenses, permits, etc. can be signed digitally and uploaded on the electronic repository. For that, what problems we are facing? The signing authorities, the FSOs, the Food Civil Supplies Officers, the Tehsildar, etc. There is a resistance to sign it digitally. So that type of reskilling is required in government service for signing authorities. There is another level now. With the coming of Meghraj, cloud.gov.in, it's an excellent tool. I would request all of you to try it out. With that, our requirement of system analysts or network managers, etc., these types of skills will go down in importance. What we would need instead is upgradation in the skill level of government servants at the middle and senior level to design e-governance programs with the help of certain courses like EGLC, that is e-governance leadership life cycle, and government process engineering. These are two fundamental things which are required now for senior and middle level officers. They can focus on the delivery part rather than on the procurement of systems part. Then we have social media. Our Honorable Prime Minister has been focusing to respond on social media, Twitter or Facebook. Earlier we have our state websites. They are by and large static in nature. But now times are changing. Perhaps government departments will have to appoint a sort of PR, public relations officer, or a social media officer who would be responding very fast. Apart from creating your own site on these social media, you would need skills to respond